لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی تحریک ہو، اسے کامیاب کروانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مالی قوت، ایک افرادی قوت. اس تنظیم کے پاس لوگ ہونے چاہیے، اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. جس کے پاس لوگ نہ ہو بات ان کی بھی کوئی نہیں سنتا، جس کے پاس دولت نہ ہو بات ان کی بھی نہیں پہنتی. اسلام ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے. مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ اس پہ لوگ کس نے دیے ہیں اور اس پہ دولت کس نے دی ہے. مارچ کا مہینہ 23 مارچ کو ہمارے ملک پاکستان میں ایک دن منایا جاتا ہے، یوم قرارداد پاکستان. اس میں سارا دن پاکستان ٹیلی ویژن جتنے بھی میڈیا کے چینلز وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان جب بننا تھا اس میں محنت لگی محمد علی جناح کی، خواب تھا اقبال کا، دولت تھی راجہ صاحب محمود آباد. جس طریقے سے تو نے پاکستان کا فلسفہ لوگوں کو سنایا، ہمیں بتا کہ اسلام جب پھیلا اس میں محنت کس کی تھی، اس میں پیسہ کس کا تھا. بس ان ہستیوں کو چھپانے کے لیے مولوی نے کہانی شروع کر دی کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا. جب تک یہ نعتیں پڑھی جاتی رہیں لوگ خاموش ہو کے یہ نعتیں سنیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ نبی تو غریب تھے، اسلام تو دولت سے نہیں پھیلا. ہمیں تیرے اندر کی چالاکی کا پتہ ہے، تو نے اس لیے کہا نبی کے گھر میں کچھ نہ تھا. اگر تو کہتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا. جو ہو سکے وہ رحمت فرمایا. واجب الاحترام ہستیاں تشریف فرمائیں. بسم اللہ سرکار. مخدوم الملت میر کارواں جناب پیر بابا نزاکت شاہ جی دعا لینے کے لیے، بابا سید مظہر شرازی صاحب، میرے بھائی ملک علی رضا، بزرگ ذاکر ملک مرید صاحب، سارے مجھ سے سینئر ہیں. صرف اس لیے کہا کچھ نہ تھا، اگر کہتے کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا. وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی. تاریخ عرب کہتی ہے جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ ہے. تو جو میری طرف کیجیے گا، میں بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت لوں گا. جب یہ نبی کے گھر آئی ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے. مشتاق شریف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سننے کے لیے آئے ہیں. دولت کے انبار لے کے آئی ہے، سونے کے ڈھیر لے کے آئی ہے، دولت کے انبار سونے کے ڈھیر لے کے یہ بی بی آئی ہے. اور تاریخیں کہتی ہیں جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی تو عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ رہے تھے عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں. پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکدار ہیں. بی بی نے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میری نکرانی کا بیٹا نہیں ہے، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مقروض کا بیٹا نہیں ہے. سب نے ہاتھ مانگا. بی بی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر تو بیٹھی ہے، اب بتا کیسے بچ سکتے ہیں. تو میں تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، ایک ہی طریقہ ہے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ. جو بول سکتے سارے بولا، ہاتھ اٹھا کے بولا حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ. بسم اللہ سر، بسم اللہ. قرضے معاف کرواتے جاؤ، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ. بابا نزاکت شاہ جی کتنی ہماری اعلیٰ ظرفی ہے. ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کروانے کے چکر میں مسلمان. یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے. ہم نے تم سے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کر. ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا. سارے مولا مل کے حیدری. ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان ہوتا تو شاعر مشرق نے کہتا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سیدوں کی ماں جس کی دولت کے صدقے میں تو جو میری پورے رکھے گے اسلام امیر ہو گیا. عرب کی عرب پتی بی بی. بسم اللہ جی بسم اللہ. جس کے نوکروں کے شادی سننی ہے تو بابا درگام شاہ جی کا انتظار کریں گے. جی آپ جی بسم اللہ سرکار. میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرو. یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی. تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی
جس کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ممبر پہ ثابت کر سکتا ہوں، نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بدور تجھے کہہ رہی ہوں، میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر۔ جو بندہ بول سکتا ہے وہ بولے، جو حق ہے سیدہ سونے کے لیے آج تک اسلام، بسم اللہ سے میری ماں کا قرض مجھے واپس کر۔ فتح کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا۔ خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں۔ آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بیوی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے امراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علیہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا، خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی۔ بی بی نے کہا، باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں، اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتا۔ یہ بی بی ہماری نبی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا۔ بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ جھنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا۔ حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی۔ سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو، کھانا بھی مل سکتا ہے، بستر بھی مل سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی۔ بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ، سامنے مسجد میں بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ۔ بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، رکھ کے کہا، ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی، باپ بھی میرا رئیس تھا، میں بھی رئیس ہوں، باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں، باپ بھی تجارت کرتا تھا، میں بھی تجارت کرتی ہوں۔ مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن شام مصر کے لیے جاتے ہیں، مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے، میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا، خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا،
आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे पे लेके आना चाहता हूँ। आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसने बीबी इसने कह दिया है जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ, ये करेगा क्या? महाफज भेजेगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीबी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रख, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसने कहा बीबी तू इतनी मुतमिन होकर क्यों जा रही है? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस अदालत से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुलाओ। सारे इकट्ठे होकर हजरत अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब, रईस मक्का, अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए, एक खुतबा दिया जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझी से हुई है। जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे पे सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा देखो कुरैश वालों, आज खवैलत की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी, उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो, लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहता हूं आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूं, जितने भी जाकरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का, जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बलई होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी वजनी है। हजरत अबू तालिब का मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई तरीका है? वो पर्दादार मसूर है, तुम उसका सामान चोरी करो। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, यहां एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले यह बता कि हम करें तो करें क्या? अरब में कारोबार क्या है? पत्थर बेचे, सिवाय पहाड़ों के यहां पे है क्या मक्के में? न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं, इतने दूर दूर के मुल्क है तजारत के लिए। अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रस्ते में खर्चा है उसमें तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं? इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं? जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं एक मुठ जौ की ला के खदीजा के तजारत के एक सामान में रख दो, जब तजारत का काफिला वापस आए जिसका एक ऊंट है दो ले लेना, जिसके दो ऊंट है चार ले लेना। जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा। अब गए घरों में जो था बाबा जी मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे जुमला छुपा नहीं सकता। अब तरीक ने यहाँ पे डंडी मारी है, मौरख ने इस्लामियात और दीनियात में लिखा है फलां बंदा अपने घर में गया, उसने दीवारों पे हाथ मारे, सुई भी ना छोड़ी, सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया, उसने इतने ऊंट अल्लाह की राह में दे दिए, उसने इतने कुएं अल्लाह की राह में दे दिए। कुरान मिंबर पे ले गया, मैं कुरान सर पे रख के तरीक का जामन होकर ऐलान करने के लिए तैयार हूं, किसी ने भी अल्लाह की राह में नहीं दिया था, जिसने भी दिया डबल करवाने के चक्कर में दिया, दुगना करवाने के चक्कर। अगर किसी ने अल्लाह की राह में दिया होता तो खुदा कुरान में जिक्र कर देता। ना मैं दलील देता हूं, मैं दलील देता हूं, परेशान ना हो गया, मैं दलील देता हूं। अगर कोई अल्लाह की राह में देता, खुदा कुरान में आयत भेजता, जिन्होंने दिया उनकी रोटियों का भी है, जिन्होंने नहीं दिया उनके ऊंठा भी कोई नहीं। अब गए जो था ला के हज़रत अबू तालिब के भाई, शायद मैं इसी मोड़ पे बात खत्म कर दूं। बड़ा बेहतरीन बड़ा लतीफ सा खताबत का एक नुक्ता आप गया बाबा जी। अब गए जो था ला के हज़रत अबू तालिब के सेहन में रखा, कहने लगे अबू तालिब हम नहीं जानते वो कौन है, सामान दिया तुझे, दुगना लेना है तेरे घर से आगे। हज़रत अबू तालिब का सामान यहां रखो, चले जाओ, जब तजारत का काफिला वापस है उधर नहीं जाना, इधर आना, मैं तुम्हें यह माल दुगना कर दूंगा। अब सामान रख के चले गए, एक बंदा भी खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जाया हो गई। सामान रख के चले गए। हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए अपने नौकर को कहा
खदीजा के नौकरों को बुला। बीबी खदीजा के नौकर आए, हजरत अबू तालिब का सामान पूरा करो, यही चोरी हुआ था। हाय 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 हाय, सामान पूरा करो। सामान पूरा करो। मुश्ताक शाह जी, तारीख इस्लाम की ये पहली रिकवरी है जो पूरी हुई। चोर अपने हाथों से सामान मालिक के घर छोड़ के चले गए। बीबी खदीजा के नौकर परेशान हो गए, उन्होंने कहा कल अभी हमने शिकायत की है, आज सामान मिल गया, ये कहां से मिला, ये कहां से आया? हज़रत अबू तालिब ने कहा, अब सुनिए, अगर लफ्ज़ ही होते हैं खताबत में, हमारे पास ना सूर है, ना ताल है, ना सोजी है, ना किताबें। हम मस्कीनों के पास लफ्ज़ ही होते हैं, लफ्ज़ ही आपने तोलने होते हैं। हज़रत अबू तालिब को बीबी खदीजा के नौकरों ने कहा, सरदार ये कहां से मिला? अबू तालिब ये कहां छोड़ो, कहां से मिला? माल उठाओ, खदीजा को जाके दो और उससे कहना कि अबू तालिब कहता है जब तजारत का काफिला वापस आए ना, इस माल का कोई सदका, इसका कोई सदका इन्हें दे दे। अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम की जमीन जरखेज हो गया। जो बंदे चुप करके बैठे हैं, मैं किताब का हवाला था, सही बुखारी में लिखा है कि जब गज़वा खैबर के बाद मुसलमानों का माल मदीने में आया, सही बुखारी में लिखा कि उस दिन मदीने की गलियों में मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से घेर रहे थे। उस दिन मुसलमान दुकानों पे जाके अपने पुराने खाते खुलवा के अपने कर्जे वापस कर रहे थे। उस दिन इस्लाम अमीर हो गया था। एक एक सहाबी के हिस्से में, सही बुखारी कहती, एक एक कंतार सोना आया था। कंतार किसे कहते हैं? एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए, वो एक एक सहाबी लेके अपने घर आया था। और इसी तरीके से मुस्लिम इस्कात में लिख दिया गया कि जब मेरे मौला अली घर में है तो हाथ में खून से भरी तलवार थी। सैयद अपने मकाम से उठी, इम्तिहान दे के कहती है, या अली, मैंने बूज़ कंबर से सुना है आज इस्लाम अमीर हो गया है, आज मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे हैं, और ये भी मैंने सुना है मरहब को भी आपने कत्ल किया है, कि लकमूस पे अलम भी आपने गाड़ा है, या अली फतह भी तेरे सदके से हुई है। आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका कोई सोना पीछे आ रहा है। अली मुस्कुरा कर, मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, तुझे नहीं पता वो सदका था, हम सैयद है, वो सदका था, हम सैयद है। सदका खाने वाला सैयद नहीं होता, और जो सैयद सदका खा ले फिर उसे अली वलीउल्लाह समझ में नहीं आता। सदका सैयद खा नहीं सकता। अगर अंदर चला जाए फिर वो पूछता रहता है कि जनाब अली वलीउल्लाह कहां लिखा है। इस माल का कुछ सदका नहीं दे। चले गए बीबी खदीजा के नौकर, जाके बीबी को खबर दी कि बीबी सामान तो सारा मिल गया। बीबी का सामान सारा मिल गया। फिर कहने को अबू तालिब ने कहा है कि इस माल का कुछ सदका। तरीक कहती है कि जब तिजारत का काफिला वापस आए, 80,000 तलाई सोने के दिनार, बीबी खदीजा को पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि अगली रात जब तिजारत का काफिला घर से निकला, चोर मुहाफिज बन गए थे। 80,000 तलाई दिनार पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। 80,000 तलाई दिनार को यूं अपनी चादर में लेके, अब फिर मैं लफ्ज़ कीमती कहने लगा, कोई मिन्नत नहीं, जो बोल पड़ेगा नौकर पे एहसान करेगा। यूं 80,000 तलाई दिनार अपनी चादर में लेके, कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत, सैयदों के घर हक दे के गई, यूं आके मार रखा। हजरत अबू तालिब ने 80,000 तलाई दिनार देखे। दौर कौन था जब लोग एक वक्त की रोटी को तरसते थे। हजरत अबू तालिब ने कहा, खदीजा ये क्या? फरमाया, ये सब कुछ आपकी ज़हानत की वजह से हुआ है, ये आपका हिस्सा है, मैं आपको देने आई। हजरत अबू तालिब मुस्कुरा के कहा, खदीजा तुझे नहीं किसी ने बताया कि हम उजरत लेके एहसान नहीं करते? उसने अगर आप उजरत लेके एहसान नहीं करते फिर हम भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीते। एहसान किया कुछ रखे। अबू तालिब रखते नहीं थे, खदीजा उठाती नहीं थी, दरमियान में तौहीद उतर आई। हजरत अबू तालिब ने कहा, एहसान करना चाहती पर एक एहसान कर, भतीजा मेरा जवान है। हुक्म किया था मेरे भाई ने, यही सदर पढ़ देता हूँ, मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है, नाम उसका मोहम्मद है। अगला जो तेरा तजारत का काफिला जाए उसमें मेरा मोहम्मद साथ लेके जाना, हम तुम्हें बताएं कि हम कौन होते हैं। अगली सुबह शरीफ तरीन चचा अपने शरीफ तरीन भतीजे को नौकरी दिलवाने के लिए खदीजा के महल के दरवाजे में पहुंचा। मलका शराफत अपने बिस्तर तहारत से तड़प के उठी।
हरीर और रंदीन के पर्दों को पीछे हटा के देखा, बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी, मुजस्सम मोहम्मद की सूरत में दरवाजे पे खड़ा था। बीवी ने नौकरों की लाइन लगी हुई में से एक नौकर को उठाया, नाम उसका मैसरा था। बीवी लेकिन मैसरा पूछ जाए, ये है सरदार अबू तालिब, ये है उसका बेटा, इसने आज रात काफिले में साथ जाना है। मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, न तूने बोरी उठानी है, न तूने बोरी रखनी है, न तूने माल बेचना है, न तूने नफा गिनना है, न तुझे नुकसान का कोई खतरा होना चाहिए। मैसरा तूने कोई तजारत का काम नहीं करना। बीवी फिर मैंने करना क्या है? बीवी कहती तेरा सिर्फ एक ही काम है, जिम्मेदारी मैं तुझे देके भेज रही, तूने इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है, इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है। मुझे वापस आके बताना इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसका चलना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके पहनने के आदाब क्या है, इसके बोलने का तरीका क्या है। मैसरा साया बन के पीछे चले जा। मैसरा ने एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, बीबी इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं है। इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं है। जाकिरीन की मजलिस है, हर एक जाकिर यहाँ बानी की हैसियत से यही मैं खत्म कर देता हूँ। चला गया मैसरा बेचैनी से, बीबी खदीजा इंतजार करती रही। मैसरा वापस आया, मैसरा ने महल का दरवाजा खोला। बीबी देखती, मैसरा खबरदार ये नहीं बताना किस शहर में ज्यादा तजारत हुई, किसमें कम हुई, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैसरा तजारत की नहीं, मुझे मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा देखा था, बीबी मैं तुझे क्या क्या बातें बताऊं। ये मोहम्मद अरबी जंगल में जाता था, दरिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त से झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने पैरों का इसके सर पे साया करते थे, जर्रा इसमें उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी जहां भूख लगती जन्नत से खाना आ जाता था, जहां प्यास लगती ठोकर मारता चलते ऊपर आते थे। बीबी जिब्रील इसके पीछे चलता था, मिकाईल इसके कदमों की धूल को साफ करता था, आसमान की बदली इसके सर पे साया करती थी। बीबी देखनी, मैं सब चुप हो जा, इतना बता ऐब तो नहीं देखा, देख तेरी इज्जत की कसम, या वो बेऐब है या फिर ये बेऐब, ना उसमें कोई है ना इसमें कोई है। खुश हो गई सैयदों की मां, खुश हो गई। बीबी ने कहा, मैसरा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। कहां चला गया झंग का मजमा? 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यार 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी 100 ऊंट सोना। गरीब है ये। 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। जितना चुप मजमा हुआ इतना ही मैसरा हो गया। उसने कहा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। बीबी क्यों? फरमाया तू तजारत करके आया तो मैं भी तजारत कर रही। अभी मुझसे तजारत कर रही। बेटी हाँ तजारत है, 100 ऊंट सोना तू रख ले, 80 ऊंट चांदी तू ले ले, यमन की सारी जायदाद तेरे नाम कर देती हूँ। काम सिर्फ इतना कर, मेरी शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर से। हाय 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 हाय, मेरी शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर चले जा। मैसरा देखा था, बीबी 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। ना बीबी तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है, तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है। बीबी कहती, आखिर तूने नौकर होकर अपनी औकात दिखा दी, मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए, मैं मोहम्मद की जूती से मार के तुझे दे देती हूँ। मैं ऐसा देखना, अपना सोना तू रख, तेरी चांदी तुझे नसीब हो, तेरी जायदाद तुझे मुबारक हो। पैगाम लेके चला मैं जाता हूँ, अगर मोहम्मद तेरे मुकद्दर का मालिक बन गया फिर मुझे इतना यकीन है जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का नाम। मुझे क्या जरूरत है मैं सोना लूं, मुझे क्या जरूरत है मैं चांदी लूं। वादा कर बीबी जन्नत का, बस वादा खत्म कीजिएगा। वादा कर बीबी जन्नत का, वादा हो गया जन्नत का। चला गया मैसरा। अब यहाँ भी चंद बंदों के ज़हन पे सवाल आ गया, वो खतीब भी क्या जो मजलिस पढ़े चेहरे में पड़े। जी पैगाम बीबी ने भेजा? हाँ हाँ बीबी ने भेजा। अगर पैगाम नबी भेजते आज मौलवी भोंग लेता। मालदार जो थी, इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, अरब की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया। या किबला शराई साहब मौलवी दूसरा राह निकाल देता। मालदार औरत को शादी का पैगाम भेजना नबी की सुन्नत है। खुदा ने कहा ना खदीजा, ना खदीजा, मैं अपने नबी के किरदार पे तोहमत बर्दाश्त नहीं करता। तू पैगाम भेज, तू पैगाम भेज। जिसे खताबत के जुमलों से मोहब्बत है वो लफ्ज़ ही कदर करेगा। पैगाम तू भेज दे, पैगाम तू भेज, पैगाम तू भेज। तो जो मेरी तरफ कीजिएगा, पैगाम तू भेज दे। बीबी खदीजा ने कहा, मेरे लब मैं औरत हूँ, मेरी अना है, मेरा मजाज है, मेरा भरम है, मैं औरत होकर पैगाम भेजूँ। तारीख क्या लिखेगी, मुअर्रख क्या कहेगा? थोड़ा तारीख जो लिखती लिखने दे, मुअर्रख जो फाऊं तब फाऊंकने दे। पैगाम तू भेज। तो जो मेरी तरफ करना, खुदा का वादा तो जो पैगाम तू भेज, पैगाम तू भेज। मेरे लब मैं पैगाम कैसे भेजूँ? तो मैं तू पैगाम भेज, मैं अल्लाह वादा करता हूँ, तू पैगाम भेज, मैं एहसान का बदला दूंगा। मेरे मालिक एहसान का बदला क्या देगा? तो मैं शादी का पैगाम तू भेज, वादा मैं अल्लाह करता हूँ, मैं मोहम्मद की शरीयत में ना दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, फिर लड़के की रजा। मैं सारे की सारी निकाह का इख्तियार ही औरत को दे दूंगा। बस
मैसरा ने शादी का पैगाम दिया, शादी का दिन मुकर्रर पाया, 10 रबीउल अव्वल शादी का दिन तय पाया। नबी की शादी का दावतनामा वहां से छपा जहां से कुरान छपा था। हजरत अबू तालिब ने नबी की शादी का दावतनामा तकसीम करने के लिए अपने पुराने कम्मी को बुलाया, जबरील मेरे मोहम्मद की शादी का दावतनामा तकसीम करके, दावतनामा तकसीम हो गया, बराती उतरने शुरू हो गए। आप शादियों में जाते हैं, जिस घर में शादी हो, शादी से 1 हफ्ता 10 दिन पहले करीबी अजीज आ जाते हैं। फिर वो जो घर का बुजुर्ग होता है उसे कहते हैं जी हम पहले इसलिए आ गए, आपके घर में शादी है, हमारे लायक कोई हुक्म, कोई खिदमत, कोई जिम्मेदारी, कोई काम। अबू तालिब के सहन में 1.25 लाख नबी कह रहे थे, अबू तालिब बता हमारे लायक कोई खिदमत, कोई हुक्म, कोई जिम्मेदारी। हजरत अबू तालिब ने जिम्मेदारी लगाई, यूसुफ तू मेरे मोहम्मद के हुस्न का सदका दे, इब्राहिम तू मेरे नबी के सर पे ताजे खुल्लत रख, दाऊद तू ज़बूरी लहजे में मोहम्मद का सेहरा पढ़। मक्के का कच्चा रास्ता था, बराती अर्श वाले थे, पानी के छिड़कने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। बस सरकार बिल्कुल आखिरी जुमला आ गया, बाबा जी तशरीफ ले आए, इतने जाकरीन से इतना वक्त ले लिया, उन सब से मैं माजरत का हूँ। बारात नबी के घर से निकली, जब दुल्हा अपने घर से निकला, यासीन का सिगरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़कियां, यमशान की ललैन, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब हाथ पकड़ के गया, और रब के गुस्ताखो दरवाजे खोल के देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात आ। सज के धज के बारात अबू तालिब के घर में पहुंची। अबू तालिब के घर से निकल के बारात बीबी खदीजा के आंगन के दरवाजे पे पहुंची। बारातियों का रूप थम गया। बारात में कहीं इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, यहया, जिक्रिया, ईसा, मूसा। जब बारात बीबी के दरवाजे पे पहुंची, इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं आसिया, कहीं सारा। बारात को बिठा दिया गया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। अब फंस गया मौलवी, अब फंस गया मौलवी। अब हमें सिर्फ इतना बता, निकाह किसने पढ़ा? कमली वाले का निकाह किसने पढ़ा? मीठे मदनी का निकाह किसने पढ़ा? सोने नबी का निकाह किसने पढ़ा? क्योंकि जिस वक्त निकाह हो रहा उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। वो मर्जी का नाम फिट कर लेता, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। वो बहुत बाद में आए हैं। 3 किताबों के हवाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो कैमरे की मौजूदगी में 3 किताबों के हवाले। तारीख तिबरी 1, सीरत हशाम 2, सीरत हलबिया 3। तीनों किताबें अहले सुन्नत भाइयों की, तीनों किताबें बरादरान अहले सुन्नत की। तीनों किताबों में लिखा है कि हजरत अबू तालिब नबी और बीबी खदीजा के दरमियान बैठे। दरमियान बैठ के हजरत अबू तालिब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व नस्ल इस्माईला व अहकाम लिन्नास व इब्न सफ़ा व इब्न मरवा व ख़तमन नबिय्यीन मिन राशिही हाज़ा अख़ी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाज़ा शरफ़ुन व नबलन व फ़ज़लन कसीरा। हजरत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठकर तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इस्माईल की नस्ल में रखा, व अहकाम लिन्नास हमें इंसानों का हाकिम बना के भेजा। अल्लाह ने हमारे सरों पे ताज नबुव्वत को सजाया हुआ है। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है, हाजियों को खाना हम खिलाते हैं, और ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। हाज़ा शरफ़ुन व नबलन व फ़ज़लन कसीरा। पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मोहतरमा मुकर्रमा बीबी खदीजा से इसका निकाह करवाने के लिए आया हूं। ये जुमला कहने के बाद हजरत अबू तालिब अपने मकाम से उठ के खड़े हुए, बीबी खदीजा के पूरे खानदान की आंखों में आंखें डाल के हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ खानदान खवैलद, हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा कर देता हूं। हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा करता हूं। आओ हजरत अबू तालिब से पूछे, मौला किस खानदान से कह रहा है जिनके रास्ते में ईरानी कलीन बिछते हैं, जिनके नौकरों के खेमों के रस्से सोने के होते हैं? मौला जमीनें मांग ली कहां से देगा, आसमान मांग लिया कहां से देगा? अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत है।